ভাৰতত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গুজৰাটৰ উপকূল অঞ্চলসমূহত জোৱাৰ ফাটাৰ ঢৌৱে আঘাত কৰাৰ লগতে উপকূলীয় অঞ্চলৰ ঘৰসমূহত সোমাইছে সাগৰীয় পানী। গুজৰাটৰ কোচ জিলাৰ জাউখা বন্দৰৰ সমীপত ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে স্থলপথত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ সময়তে প্ৰশাসনে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা কৰিছে। ইতিমধ্যে ৭৪,০০০তকৈও অধিক লোকক স্থানান্তৰিত কৰি উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য ব্যৱস্থাৰ বাবে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা দল নিয়োগ কৰা হৈছে। গুজৰাটৰ বেৰেলিং হোৱাৰ লগে লগে কুচ অঞ্চলৰ বহু অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বতাহৰ লগতে প্ৰচণ্ড বৰষুণো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘণ্টাত প্ৰায় ১৮০ কিলোমিটাৰ বেগত আহিছে বিপৰ্যয়। আজি কচ্ছৰ মাণ্ডৱী সাগৰত দেখিব পোৱা গৈছে ৰুদ্ৰৰূপ। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞানে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট। বিপৰ্যয়ৰ বাবে পূব মধ্য আৰৱ সাগৰ, মাণ্ডৱী সাগৰ, মেৰিন ড্ৰাইভ, পাকিস্তানৰ কাৰচিত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ৮খন জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। বাতিল কৰা হৈছে ৭৬খন ৰেল সেৱা। নিৰাপদ ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে প্ৰায় ১ লাখ লোকক। Severe cyclonic storm Biparjoy. The Indian Coast Guard is fully ready. In warning, we had deployed our ships earlier. Now our ships are ready in the harbors, in the search and rescue and response mode, and in the marine pollution response mode. They are ready at various places at Mundra, Pipava, Okha. They are standby. Further, we have kept 23 DRTs. That is the disaster response teams, all across Gujarat. We have our aircrafts, that is, you can see over here, we have kept 4 Dorniers, 1 ALH at Gujarat. We have another 4 Dorniers, 4 Chetaks, and 1 ALH at Daman standby. We have 23 disaster relief teams which are there. The next course of action is that the process continues. We have been again and again warning the oil handling agencies because with the storm being heavy, there are oil handling agencies in the Gulf of Kutch which might be affected. There are ships which might get grounded and might have oil pollution. So our pollution response teams are also ready. We have 8 stations in Gujarat which are totally standby in response and relief mode. Our Coast Guard remote operating centers, remote operating stations at Mumbai, Goa, Karnataka, Kerala, Lakshadweep and Minicoy were manned 24/7. जरूरी है कि हम लोग सेफ प्लेसेस में रहे। कोई लो लैंग एरिया में है तो सेफ प्लेस को चले जाना चाहिए। जो अभी हमारा लेटेस्ट पूर्वानुमान है, इसके हिसाब से हम ये बोल रहे हैं कि जब ये तट को टकराएगा तब इसका विंड स्पीड 100। इसीलिए जो हमारा प्रेडिक्शन है कि मिडनाइट तक ये साइक्लोन का जो आई है और सेंट्रल पार्ट है वो लैंड पर चला जाएगा और इसका जो विंड स्पीड है वो अभी लगभग 120 to 130 km/h, गस्टिंग टू 148 km/h है। जब ये कोस्ट को हिट करेगा तब इसका विंड स्पीड 115 to 125, गस्टिंग टू 135 km होगा। सर इंटेंसिटी कम हुई है क्या, वीक पड़ा है पहले से कंपैरेटिवली जो हवा की गति है, और कितने सेंटीमीटर लगभग बारिश एक्सपेक्टेड है? जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था कि 15 तारीख को ये साइक्लोन थोड़ी सी वीक होगा मगर वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रहेगा। अभी भी ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है और ये वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को हिट करेगा। और इसका जो बारिश की हम बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मोस्ट प्लेसेस में बारिश होगा। सौराष्ट्र कच्छ में कुछ एरिया में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे कि कच्छ, मोरबी, जामनगर, राजकोट और द्वारका, पोरबंदर वगैरह। सर क्या और एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल का मतलब होता है कि रेनफॉल एक्सीडिंग 20 सेंटीमीटर। ये साइक्लोन हिटिंग करने के बाद कोस्ट को फिर भी नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट करेगा। नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे वीक होगा और 16 तारीख सुबह ये एक सिंपल साइक्लोन स्टॉर्म हो जाएगा जिसका विंड स्पीड 70 to 80 km/h होगा। फिर 16 तारीख शाम को नॉर्थ ईस्ट मूव करते हुए ये एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा जिसमें विंड स्पीड
50 to 60 km/h हो सकता है। और फिर 17 तारीख सुबह आप देखेंगे ये वीक होते हुए राजस्थान के ऊपर होगा, शायद एक मार्जिनल डिप्रेशन, नहीं तो एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया जैसे रहेगा। तो इसीलिए इसका जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है ये गुजरात के ऊपर होगा। और बारिश का बात करें तो 16 तारीख और 17 तारीख को राजस्थान में, स्पेशली साउथ राजस्थान और साउथ ईस्ट राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश होगा, मगर बाय दैट टाइम रेनफॉल जो गुजरात में अभी होने वाला है वो रिड्यूस हो जाएगा। सर दिल्ली पर भी, दिल्ली के मौसम पे किसी तरह का असर होगा? दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को किसी तरह का अलर्ट जारी किया आप लोगों ने? इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी दिल्ली के ऊपर नहीं है। सो हम अभी जो टारगेट कर रहे हैं वो है गुजरात, दीव, राजस्थान। इसमें जो हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं राजस्थान में, फॉर एग्जांपल, इसमें लो लाइंग एरिया में इनंडेशन हो सकता है। गुजरात में तो आपको बताया क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। दिल्ली में इसका कोई ऐसे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, वैसे कोई हजारा सिचुएशन होने का कोई संभावना नहीं है। अब आपको ये बताऊं, बॉम्बे को भी इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, मगर कुछ वेव जैसे कोई साइक्लोन नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है तो कोस्टल एरिया में, महाराष्ट्र कोस्टल एरिया में जो वेव हाइट है थोड़ा ज्यादा आता है और अभी आ रहा है भी। अदरवाइज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे कुछ इसका महाराष्ट्र कोस्ट में नहीं है। पाकिस्तान को हम लगातार इसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जब भी पहले हम 2 हफ्ता पहले पूर्वानुमान लगाए थे कि अरेबियन सी में साइक्लोजेनेसिस होने वाला है, इसका जानकारी हम पाकिस्तान को भी दिए थे। और डिप्रेशन जब 6 तारीख को बन गया, इसके बारे में भी हर 3 घंटे में पाकिस्तान को हम हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हम एक रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर जैसे काम करते हैं इंटरनेशनली, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जितना कंट्री है सभी कंट्री को डिप्रेशन, साइक्लोन, सीवियर वेदर के बारे में हम पूर्वानुमान देते हैं और एडवाइजरी देते हैं। सर, दिल्ली में जो मानसून आने वाला है उस पर क्या साइक्लोन का असर पड़ेगा? दिल्ली का मानसून बहुत दूर है मैडम। अभी मानसून साउथ पेनिनसुला कवर करेगा पहले, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुका है, ईस्टर्न इंडिया कवर करेगा, सेंट्रल इंडिया कवर करेगा, इसके बाद दिल्ली की बात हम करेंगे। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।